Sat Shri Akal ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. I'm Aarti from Punjabi Chamber of Commerce. I'm pleased to welcome you all in today's webinar on use of 5S for workplace improvement with our speaker, Mr. Surinder Singh. So before we start the session, I would like to give a brief introduction about Punjabi Chamber of Commerce. So next slide, please. So yes, Punjabi Chamber of Commerce एक non-profit organization है which was established in 2017 and headquartered in New Jersey, USA. It envisions to facilitate global and local business communities with a networking forum wherein they can build new connections, access informative mentorships and advocacy programs. We have strict no religion, no politics policy, and we believe in diversity and inclusion. Next slide, please. So yes, all the activities and goals of Punjabi Chamber of Commerce are driven by three ethos. These are capital building, capacity building, and community building. Next slide, please. Our chapters. We have 18 chapters and we are in 4 continents and 5 countries. Here is the brief overview of our chapters. You can see this on screen. Yes. So a question ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ why you should join the chamber. So answer ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ. First one is network. You can expand your network and build new connections with Punjabi Chamber of Commerce. The second one is discount. ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ-ਅਪਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ PCC ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਆਫਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ. So the third one is growth. Punjabi Chamber of Commerce helps you in your business growth and your personal development. The next one is give back. You can become a mentor and guide the future generation with Punjabi Chamber of Commerce. Visibility and voice. In a monthly newsletter and social media post, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਫੀਚਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਪੌਟਲਾਈਟ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਵੀਕ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਮੰਥ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ. ਸੋ ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼. ਆਰ ਵਿੰਗਸ. PCF Punjabi Chamber Foundation, our charitable arm, and GYS Global Youth Squad, our youth wing. The main objective is to create a legacy for the next generation to build, grow, and succeed. Through GYS, Global Youth Squad, our main aim to facilitate global community with a networking forum wherein they can access mentorship programs and professional training sessions. We have been raising funds for COVID relief program from past 2 years through our PCF, Punjabi Chamber Foundation. Next slide, please. So now I would like to introduce our today's speaker, Mr. Surinder Singh. With more than 30 years of industrial experience, Mr. SB Sir is the Chief Executive Officer of Taran Industries and member of CII's Zonal Council and Ludhiana City Infrastructure Improvement Core Group. He is also the Joint Secretary and Head of Industrial Interactions Wing of CICU. In a way of pen down his experience at one place, he has written a book named How to Improve MSMEs. So we welcome you, sir, and request you to kindly take the session ahead. Thank you. Thank you so much. Thank you, Aarti. Thank you, Vrinda, and thank you, Manisha, for arranging all this, making all these arrangements. And we would like to start with the concept which we are going to explain. It is basically a Japanese concept called 5S. So just for the ease of people, language koi issue na rahe, so I would like to add some mixed language so that understanding part ka koi issue na rahe. So ये जो एक Japanese concept है 5S, ये बेसिकली वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है. और ये इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ए मिथ अबाउट दिस. एक ये मिथ इसके बारे में डेवलप किया गया है कि ये साफ सफाई से रिलेटेड एक्सरसाइज है. सो आई वुड लाइक टू क्लियर दिस मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग
that this is some साफ सफाई sort of thing. It is somewhere related to some cleaning part. कह सकते हैं कि साफ सफाई इसका कुछ हिस्सा है, लेकिन 5S साफ सफाई ही है ऐसा नहीं है जो आमतौर पर एक धारणा बना दी गई। सो बेसिकली 5S एक वर्कप्लेस मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसमें हम अपने जो भी जहां भी हमारा वर्कप्लेस है, इट मे बी ऑफिस, इट मे बी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ए सर्विस यूनिट, कोई भी हमारा अगर कोई भी ऑफिस वर्कप्लेस है तो इन दैट केस वहां का टोटल सामान का रख रखाव प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक हो, इसको मेंटेन सस्टेन करने में जो चीज हेल्प करती है, दैट इज ए सिस्टम कॉल्ड 5S. So I request you to proceed for the next slide, please. Next slide, please. Next slide. Yes. So अगर कहीं पर भी हमने इस चीज को लागू करना है तो बेसिकली 5S जो है इसके बारे में we need to create awareness to the people who are working over there. Then we need to से जो हमारा वर्क प्लेस है उसको हम डिफरेंट एरियाज में जोग्राफिकली ऑलमोस्ट इक्वल जोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं. सो वी कॉल इट इन द लैंग्वेज ऑफ 5S, हम कहते हैं कि हमारे जो टोटल एरिया है वर्क प्लेस का उसके हमने डिफरेंट जोन्स बना दिए और उन जोन्स में वी नॉमिनेट सम जोन लीडर्स एंड देन वी कैरी आउट उसकी अवेयरनेस क्रिएट करके इसका जो ऑडिटिंग वाला पूरा पार्ट है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट, वो सारी चीज लागू करते हैं. तो ये दिस इज टोटल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग जब भी हम इस 5S को किसी भी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. यस. सो अभी इफ यू आर एबल टू व्यू ऑन द स्क्रीन, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 5 लेफ्ट साइड पे 5 डिफरेंट जैपनीज वर्ड लिखे हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर ऑफ द 5S को थोड़ा समझना जरूरी है कि हमारा ये जो 5S है इसको हम 5S कहते क्यों हैं. बेसिकली दिस 5S इज बेसिकली पहले जो 5 आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जैपनीज वर्ड लिखे हुए हैं, सेरी, सैतोन, सैसो, सैकेत्सु, शित्सुके. So these are 5 Japanese words, but these all start from English alphabet S. So that is why we call it 5S. जापानी लोग इसको 5S इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 जापानी शब्द हैं जो इंग्लिश के अल्फाबेट S से शुरू हो रहे हैं. So that is why this concept is called 5S. अब ये इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा वो दिमाग का बोझ डालने की जरूरत नहीं है कि जी ये जापानी शब्द याद रखने चाहिए या नहीं रहने चाहिए. It hardly matters. If you are able to recollect these names, it is good. Otherwise, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे जापानी शब्द याद रहेंगे या नहीं रहेंगे. We need to understand what is the meaning of these different 5S जो words हैं. So we will start with the first S part. अगर हम first S की बात करें, तो ये जो सेरी है, it says you need to sort out the things, segregate the things, and अगर आप देखेंगे आपके वर्क प्लेस पर दोनों प्रकार के सामान हो सकते हैं. कुछ ऐसे सामान जिनकी आपको जरूरत है, पर कुछ ऐसे भी सामान पड़े होंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है. मींस दोज आर अनवांटेड ओवर देयर. सो यू फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट, सॉर्ट आउट एंड सेग्रीगेट. आपके जो काम के मटेरियल है आप उसको एक अलग जगह कर लेते हैं, और या जो आपके काम के नहीं है आप उनको अलग जगह करते हैं. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड फर्स्ट एस, सॉर्टिंग आउट, अगर हम सेरी की बात करें. अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए इसको प्रैक्टिकल कुछ होमली एग्जांपल्स लेकर भी हम इसको एलैबोरेट कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज हम आमतौर पर अपने घरों में भी करते हैं. लाइक इफ यू माइट हैव नोटिस्ड, हमारे पास न्यूज़पेपर आता है और हम 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बाद एक देखते हैं कि एक बंच ऑफ न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गया, जगह भी, स्पेस भी इसने काफी कंज्यूम कर लिया. तो व्हाट वी डू इज, कुछ दिन का न्यूज़पेपर जो हमें लगता है बेयर मिनिमम इतने न्यूज़पेपर कितने दिन का रखना है, हम अपने पास रिटेन कर लेते हैं एंड वी सेल इट ऑफ, रद्दी में उसको बेच देते हैं. इट इज बेसिकली, जो रद्दी में हम बेच देते हैं, इट इज बेसिकली 1S. अब आपको लगा कि ये न्यूज़पेपर मेरे काम के नहीं है, इट इज कंज्यूमिंग स्पेस, तो आप अपने घर में ये 1S एक्सरसाइज एक तो इस तरीके से करते हैं. देन you do this exercise in some other ways also. आपका कोई क्लोथ्स हैं, शूज हैं, ओल्ड फैशन हो गए या अब लगता है कि थोड़े वेयर आउट हो गए हैं, तो you dispose of them off.
कि चलो अब इसको निकाल देते हैं. दिस इज आल्सो वन फर्स्ट एस ऑफ द कंसेप्ट 5S. ऐसे ही आपका कोई घर में चेयर है, कोई पलंग है, टूट गया, बियॉन्ड रिपेयर है, व्हाट यू डू इज कि अब हमें लगता है ये बियॉन्ड रिपेयर है तो चलो इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. सो दिस इज फर्स्ट एस एक्सरसाइज जो आप ऑलरेडी अपने घर पे करते हैं. बट अगर इसको हम थोड़ा सा किसी वर्क प्लेस के एंगल से देखें तो वहां क्या इसका लॉजिक है और इसमें किस तरीके के सामान आमतौर पर निकल के आते हैं वो भी मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा. एंड आई इलेबोरेट बोथ वेज. कोई ऑफिस कॉम्प्लेक्स अगर कोई है या सर्विस एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं जस्ट टू हैव ए क्लियर व्यू ऑफ व्हाट इज 1S एंड व्हाट कुड बी द आइटम्स जो कि वहां पर अनवांटेड आइटम्स होती हैं. अगर हम ऑफिसेस की बात करें, एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स कोई है चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपडेट होती है. तो पीपल रिक्वायर कि जी मेरा कंप्यूटर अपग्रेड करना है तो मेरा नया कंप्यूटर लेकर दीजिए और उसको हम दे भी देते हैं. अब वो जो नया आपने कंप्यूटर लिया अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, वो तो आपने लगा दिया, यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो पुराना कंप्यूटर आपने उतारा है, रिमूव किया है, उसकी एक जनरल जो पैक्ड जगह होती है वो किसी अलमीरा के ऊपर या किसी कॉर्नर में जहां कोई लगे, कोई आइसोलेटेड प्लेस है वहां पर हम रख देते हैं. इट इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट. क्या करेंगे इसका और कब तक रखेंगे उसको. सो कंप्यूटर सिस्टम इज वन काइंड ऑफ 1S एक्टिविटी जिसमें आप वो अनवांटेड आइटम रिमूव कर सकते हैं. मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं. 5S की भाषा में जो ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो वी कॉल देम रेड टैग्ड आइटम्स. जनरली हम इसकी प्रोसेस जब करते हैं, आई शो यू सम फोटोग्राफ्स आल्सो, जिसमें आप देखेंगे कि हम कुछ रेड टैग लगाकर उनको रिमूव कर देते हैं. आई शो यू दोस फोटोग्राफ्स आल्सो. तो आपने एक मैंने एग्जांपल लिया, आपका कंप्यूटर सिस्टम आपने नया लगाया तो पुराने वाला जो सिस्टम है दैट इज रेड टैग्ड आइटम जिसकी जरूरत नहीं है. यू नीड टू डिस्पोज इट ऑफ रादर देन कीपिंग इट. ऐसे ही आपके यहाँ कोई नया कूलर आया, वाटर कूलर, पुराने वाला खुला कोने में रख दिया. आपके पास कोई नई फोटोस्टेट मशीन आई या कोई जेरोक्स या और कोई आपके फैक्स या इस टाइप का कोई भी मशीन आया नया, और आपने वो पुराने वाला मशीन खोल के जो है वो कहीं कोने में या अलमारी के ऊपर रख दिया. ओल्ड रिकॉर्ड्स भी कई बार ऐसे होते हैं जो कि आपके अनवांटेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप कई कई साल रखे रखते हैं जबकि उसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती. So these are some examples related to the basics of कि 1S ऑफिस कॉम्प्लेक्स में या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट होता है. देन कमिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग साइड, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो इन दैट केस उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होगा. मान लीजिए आपका कोई कंपोनेंट आप बनाते थे पहले, अभी वो डिजाइन चेंज हो गया. अब जो आपका डिजाइन चेंज हो गया है, इन दैट केस उस डिजाइन का कोई भी आपके पास मटेरियल पड़ा हो, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड्स, और या उसका कोई रॉ मटेरियल पड़ा है या उसकी डाइज टूलिंग्स पड़ी हैं, सो दोज आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ. वी मे रीयूज इट फॉर सम अदर एस्पेक्ट. ऐसे ही कोई मशीन बहुत साल से पड़ी है, यूटिलाइज नहीं हुई, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी रहती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी होती हैं. कोई मशीनरी के स्पेयर्स, आपने कोई प्रेस का फ्राई व्हील बड़ा है वो चेंज किया, पुराने वाला खोला कोने में रख दिया. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट. सो अंडर 1S इस तरीके की आइटम्स आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे अलग अलग जोन्स में कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं. देन वी से पुट ए टैग, रेड टैग ओवर देयर, और उसको फिर एक लिस्ट बनाकर उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं. दिस इज द फर्स्ट S एक्सरसाइज एज फार एज द theory is concerned. First S of the concept 5S. So I'll like to show you some photographs also. Next slide, please. Next. Yes. You can view हमारे वर्कशॉप में कई बार अनवांटेड मटेरियल इधर उधर ऐसे पड़े रहते हैं. So this is one example of what kind of materials are lying here and there which are not required. Next slide, please. ये जो आइटम्स आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आइटम्स मेरी रिक्वायर्ड नहीं है, इन दैट केस आपको उन आइटम्स को एक टैग साथ में लगाकर इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
ये कुछ आप देखेंगे, दिस इज ए रेड टैग एरिया ऑफ ए जोन। किसी भी 5S ऑर्गेनाइजेशन में हम जोन्स में अलग अलग एरिया बनाते हैं, एलोकेट कर देते हैं कि अनवांटेड मटेरियल को टैग लगा के आप यहाँ रखेंगे। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हैविंग सम रेड टैग आइटम्स इन ए रेड टैग एरिया। अनवांटेड है, ये सारी अनवांटेड आइटम है, इसमें डिटेल्स लिखी हुई है टैग के साथ लगाकर, जिसमें आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मटेरियल फलानी जगह पड़ा था इसलिए अनवांटेड है, उसका रीजन ये है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is another example of some red tag items kept in a red tag area. Next slide please. ये एक टैग है जिसको हम साथ में वो टाई करते हैं to the unwanted item. Next slide please. Okay. So अभी हम 1S पार्ट की बात कर रहे थे कि 1S पार्ट जो है उसमें हम अनवांटेड आइटम्स को लिस्ट बनाकर टैग लगाकर आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करते हैं। और जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाए कि 1S एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस कितना है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू वन रीसेंट एग्जांपल। we implement these concepts in manufacturing organizations। तो हमारा कहीं प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पर so the director felt this that this concept is very important, और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर कर दिया कि फॉर 3 days ये मैं एक एरिया एलोकेट कर रहा हूँ, इस एरिया में जिसको भी किसी को कोई अनवांटेड आइटम मिलती है उसको लाके यहाँ इकट्ठा कर दीजिए। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वहां पर जब वो आइटम्स को इकट्ठा किया गया, वहां पर उसको 3 दिन में जितना मटेरियल वहां पर इकट्ठा हुआ था उसको जब डिस्पोज ऑफ किया गया, द वैल्यू ऑफ रिकवरी of that material was 46,75,000 rupees. Within 3 days there were so much material which were not required और वो सालों से वहां पड़े थे, बट वो इजीली डिसीजन लिया जा सकता था उनके बारे में कि ये आइटम्स नॉट रिक्वायर्ड है, तो उनको डिस्पोज ऑफ करने पर the value of recovery over there was 46,75,000 rupees. So ये मैंने एग्जांपल आपसे इसलिए शेयर किया जस्ट टू हैव ए ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज द पोटेंशियल कि कितना कितना आइटम किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे अनवांटेड पड़े रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट 1S पार्ट, बट बिफोर आई गो टू 2S पार्ट, यहाँ जब हम 1S पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एरिया आमतौर पर निग्लेक्टेड रहता है। हम जब हम 1S पार्ट की बात करते हैं तो वी ओनली कीप इन अवर माइंड द फिजिकल आइटम्स व्हिच आर लाइंग हियर एंड देयर, बट एक लेटेस्ट इसमें एडिशन ये है कि हमें सॉफ्ट डाटा का भी 1S करना चाहिए। आप अपने कंप्यूटर पर देखिए कितनी ऐसी फाइल्स हैं, कितनी ऐसी मेल्स हैं, कितने आपने डाटा ऐसे रखे हुए हैं जो कई कई महीनों से कई कई साल से पड़े हैं, which are not required now. So what you need to do is under this 1S exercise आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसका कोई फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लीजिए, हर 15 दिन में एक बार, हर महीने में एक बार मैं ये एक्सरसाइज करूंगा कि जिससे कि हमारी जो है जो पार्ट है वो हम इस तरीके से कर सके कि हमारा सॉफ्ट डाटा भी 1S जो है वो साथ साथ होता रहे, उसमें से भी अनवांटेड डाटा हम रिमूव करते रहे। अनड्यू ऐसे ही जो स्पेस वो जो डाटा ने कंज्यूम किया है we are able to save that space. तो दिस वाज ऑल अबाउट 1S पार्ट। जैसे मैंने बताया सॉफ्ट डाटा पर भी ये एप्लीकेबल है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड S पार्ट, सेतोन, और इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सो अब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की अगर हम बात करेंगे, इसको एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो तो वी से देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स प्लेस। हर एक चीज की एक पक्की जगह होनी चाहिए और वो चीज वहीं पर रखी हुई होनी चाहिए। अब मैं इसके लैक ऑफ 2S के कुछ एग्जांपल्स आपको साइड करता हूं और आपको रियलाइज होगा कि हमारी नॉर्मल रूटीन की लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ 2S। से फॉर एग्जांपल आप ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े हो एंड यू आर नॉट एबल टू ट्रेस द की ऑफ योर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। स्कूटर मोटरसाइकिल की चाबी नहीं लभदी पई या कार की चाबी नहीं लभदी पई, एंड वी आर वेस्टिंग टाइम एंड एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन भी होती है, दूसरे को कह देते हैं आपने यहाँ रख दिया होगा, मम्मी आपने पता नहीं कहाँ चाबी रखती है, like all that those kind of things. This is lack of 2S which is resulting into time loss and frustration. ऐसे ही आपके घर में आपने कुछ मेडिसिन रखी हुई हो और जरूरत पड़ने पर मेडिसिन नहीं मिल रही है,
आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, आपके कुछ LIC पॉलिसीज हैं, FDs हैं, ऑल सच डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, ऑल सच, और जरूरत पड़ने पर वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, या आपने अपना कोई भी घर में हम छोटे थोड़े बहुत टूल्स रखते हैं, कोई से स्क्रू ड्राइवर या हम इस तरीके के जो पाइप रेंच या इस टाइप के कुछ छोटे मोटे जो आइटम्स हैं वो रखते हैं, एंड आपका ऐप कहीं थोड़ा सा ढीला हो गया है, एंड इफ यू आर एबल टू ट्रेस योर पाइप रेंच, यू कैन इजीली डू इट योरसेल्फ, लेकिन आप ट्राई करते हो और आपको वो जो आपके टूल्स कहाँ रखे हैं वो नहीं मिल रहे, एट टाइम्स इट हैपेंस। और उस केस में हम साथ में एक ये भी लाइन जोड़ देते हैं, ज्यादा ही संभाल के रखता है। सो इन दैट केस वो जो पार्ट है, आपका टाइम लॉस हो रहा है, बिकॉज आपने कोई प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस वाला कंसेप्ट नहीं लागू किया, इसलिए टाइम ढूंढने में टाइम वेस्ट हो रहा है। और ऐसे ही वर्कशॉप ऑफिसेज में भी आई विल शेयर विद यू कुछ सम एग्जांपल्स जहां पर 2S बड़ा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होता है। पर उस बिफोर वी गो टू दैट मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊं 2S के, उससे पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये जो मैंने सॉफ्ट डाटा की बात की थी, सॉफ्ट डाटा में 1S फर्स्ट S तो लागू है ही है, 2S इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं उसका एग्जांपल आपको मतलब विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि उस मान लीजिए आप के ऑफिस में से कोई एक पर्सन आज छुट्टी पर है, उसने घर से आपको फोन कर दिया कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे। अब बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अब उसके कंप्यूटर में उसने डाटा कैसे रखा हुआ है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, कौन सा डाटा कहाँ रखा हुआ है, एंड जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, उनकी एब्सेंस में कोई दूसरा आदमी इफेक्टिवली उस वर्क स्टेशन पे काम नहीं कर सकता। दिस इज जनरली ऑब्जर्व्ड। बट यहां पर अब क्या करना होगा, 2S सेकंड S ऑफ सॉफ्ट डाटा आल्सो आपके कंप्यूटर में थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपका एक ऑफिस है, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वेरियस ऑफिसेज हैं, जितने भी लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसका एक डेजिग्नेटेड सिस्टम होना चाहिए, कौन सा डाटा रखना है टोटल, उसमें कौन सा डाटा कौन सी फाइल में रखना है, कौन से फोल्डर में रखना है, उसको एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम होना चाहिए। यानी मैं अगर आज ऑफिस में नहीं आया तो मेरी एब्सेंस में मेरे सीनियर को पता हो मेरा डाटा कौन सा डाटा कहाँ रखा है, कौन सी फाइल कौन सा फोल्डर कहाँ रखा है, डेजिग्नेटेड सिस्टम से, so then ABC person in my absence also can work effectively. So this is soft data 2S also. तो मैं जो सॉफ्ट डाटा की बात कर रहा हूँ उसमें 1S भी लागू है, रिमूविंग अनवांटेड डाटा जो है, एंड जो आपने डाटा स्टोर करना है उसका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो डेजिग्नेटेड हो, डॉक्यूमेंटेड हो रहा था। So I'll show you some photographs of 2S also. I'll request the next slide to be moved. Yes. Kindly excuse me. हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्टिविटी इंप्लीमेंट करवाते हैं। We have implemented these projects in more than 350 companies. तो मेरा जो जनरल एक्सपीरियंस रहा है, आपके सामने दो फोटोग्राफ्स यहाँ नजर आ रहे होंगे, एक फोटो लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, और आई होप मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि हमारे जो ज्यादातर लोगों के ड्राफ्ट्स होते हैं वो जो जैसा लेफ्ट साइड में पड़ा है वैसे ही, जबकि लॉजिकली एज पर 2S कंसेप्ट ये जो राइट साइड में जैसा है वैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू इलेबोरेट बिट, हम कई बार जहां मैंने जैसे बताया कि हम बहुत सारी कंपनीज में कंसेप्ट लागू करते हैं, तो एट टाइम्स वी कम अक्रॉस सम एग्जीक्यूटिव्स जिनको अगर हम ये कहें कि ये थोड़ा दराज इतना गड़बड़ हैगा, तो वो बड़ा थोड़ा सा लाइटली भी कहते हैं, सर इसमें कौन सा घबराने की वाली बात है, ये दराज तो मेरी तरफ खुलता है, सामने वाले किसी के पास थोड़ा खुलता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही है, वो दराज मेरी ओर ही खुलता है। पर मान लीजिए मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे सामने कुछ कस्टमर या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विजिटर्स बैठे हैं। अब मान लीजिए मेरा जैसा ड्रार लेफ्ट साइड पे शो कर रहा है, अगर वैसा है, मुझे कोई काम करना होगा तो मैं सारा मटेरियल उठा के थब्बा बना के पहले टेबल पे रखूंगा, उसको फिर मैं काम करने के बाद फिर थब्बा बना के वापस अंदर रखूंगा। So that person will carry my image as a being a very non-professional person. बट अगर मेरा ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ ड्रॉर भी मेरा ऐसा मेंटेन है, तो दैट पर्सन विल कैरी एन इमेज ऑफ वर्किंग एज ए वेरी प्रोफेशनल वे। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ 2S ऑफिस में जनरली ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक कोई भी बड़ा रूम है जहां पर कुछ फैंस हैं, कुछ लाइट्स हैं, एसीज हैं,
तो आप अपना जनरली रिएक्शन देखिएगा क्या होता है। आपने कोई एक लाइट जलानी है, ऑन करनी है, स्विच ऑन करना है, व्हाट यू विल डू, आप पहला जो स्विच है वहां पर जाकर उसको ऑन करेंगे, ओह नहीं पंखा चल गया, दूसरा ओह नहीं फलाना चीज होगी, दूसरी लाइट जग गई। सो इट इज ऑलवेज ए हिट एंड ट्रायल। बहुत बार हिट एंड ट्रायल करने पर वो स्विच ऑन होगा जिस लाइट को आप ऑन करना चाहते हैं। बट इसका बड़ा सिंपल हल है अंडर 2S। आपकी लाइट्स जो है, आप देखेंगे लाइट लेफ्ट साइड में लाइट्स के साथ में टोकन लगे हुए, उनके नंबर लगाए हुए हैं, L1 L2। ऐसे ही फैंस हैं F1 F2। और जो उसका स्विच है आप उसके ऊपर अगर स्टिकर लगा दें, जो स्विच से फैन नंबर 1 ऑन होता है उसके ऊपर F1, ऐसे ही जो फैन नंबर 2 है उसके स्विच के ऊपर F2। तो इन दैट केस यू डोंट नीड टू डू सम हिट एंड ट्रायल। उस केस में आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि आपका जो वो पार्ट है वो आपको उससे सिर्फ उसी स्विच को आप ऑन करेंगे जिस स्विच से आपको ऑन करना है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिकॉर्ड कीपिंग। हमारे बहुत बार रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जैसे ये लेफ्ट साइड पे पड़ा है, नॉट इन ए वेरी वेल मेंटेन्ड वे। और हमने तो सी वी इन कंपनीज, हम मैन्युफैक्चरिंग में हम एक सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं ISO 9001। तो जनरली उसका जब ऑडिट होता है तो ऐसे बहुत बार वी कम अक्रॉस ए सिचुएशन की वो ऑडिटर कोई डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है और वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट विद इन 2-3 मिनट्स व्हिच ही और शी एक्सपेक्ट्स। इन एन ऑडिट दे एक्सपेक्ट द रिकॉर्ड टू बी रिट्रीव्ड विद इन 2 to 3 मिनट्स। बट अगर वो लेफ्ट साइड में जैसा रिकॉर्ड है अगर ऐसे रखे हुए हैं तो इट विल नॉट बी इजी टू डू। पर अगर राइट साइड में जैसा रखा है तो इन दैट केस आपको कोई भी रिकॉर्ड ढूंढना है, इट विल टेक अ मिनट और 2 मैक्सिमम। एंड दिस आई एम सेइंग फॉर रनिंग रिकॉर्ड्स एज वेल एज ओल्ड रिकॉर्ड्स। आपके पुराने रिकॉर्ड्स भी ऐसे होने चाहिए। इस तरीके से यदि रखे जाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से नंबर लगाकर लिस्ट बनाकर, तो इन दैट केस आपको वो रिकॉर्ड विद इन मिनट्स ट्रेसेबल होगा। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, पुराने रिकॉर्ड्स की बड़ी शैबी कंडीशन होती है। हम किसी एग्जीक्यूटिव को ये कह दें फलाने कस्टमर का 3 साल पहले जो हमने मटेरियल सप्लाई किया था उसकी फाइल निकालो, एंड व्हेन वी से फाइल निकालो तो जनरली हमारी टोन से ये एक्सपेक्टेशन जाहिर होती है कि हमें 10-15 मिनट में वो फाइल मिल जाए। और एट टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशंस कि हम 3 साल पुराना अगर रिकॉर्ड किसी से मांग लें तो वो जो एग्जीक्यूटिव उसको मैनेज कर रहा होता है उसको ऐसा लगता है पता नहीं मुझे शाम तक भी वो फाइल मिलेगी कि नहीं, और सर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10-15 मिनट में। सो दिस इज राइट वे टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, जिससे कि हमारा कोई भी रिकॉर्ड इजीली रिट्रीवेबल हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में ये भी सारी जगह जो जो मटेरियल जहां रखे उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मटेरियल हैंडलिंग इस तरीके से हो कि आपस में टच होके खराब नहीं हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ऑफिसेस। हमारे पास ऑफिस में रबर स्टैंप्स कई बार होती है 10, 12, 15, और उसमें भी एक हिट एंड ट्रायल होता है। मान लीजिए ऑफिस एग्जीक्यूटिव ने कोई एक रबर स्टैंप अप्लाई करनी है तो उसका जनरल रिएक्शन क्या रहता है, वो पहली रबर स्टैंप उठाएगा, रफ कागज के ऊपर उसको अप्लाई करके नहीं आ वाली दूजी फड़ा, दूजी नहीं तीजी फड़ा। सो ऐसा टाइम वेस्ट नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप देखेंगे टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है रबर स्टैंप्स जहां रखी हैं उनके पीछे उसके स्टिकर्स लगे हुए, उनमें एक्चुअली रबर स्टैंप में क्या है, क्या उसके अंदर वो रबर स्टैंप पे वो प्रिंटेड है। सो आपका हाथ उसी रबर स्टैंप पे जाएगा जो आपने अप्लाई करनी है, देयर विल नो टाइम वेस्टेज। ऐसे ही आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे नीचे जो आपके पास है फोटोग्राफ है, उसमें टूल्स रखने के लिए आमतौर पर कई बार लोग बक्सा या अलमारी या झोला इसमें रख लेते हैं, तो उसमें ढूंढने में टाइम वेस्ट बहुत होता है। बट अगर आप इसको वी कॉल इट शैडो बोर्ड, अगर आप इस तरीके से शैडो मोड में कुछ टूल्स रखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ दरवाजे के सामने वो सेफ्टी एरिया शो किया गया, मींस अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे तो यू आर एट रिस्क, दरवाजा खुलने पे चोट लग सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रिकॉर्ड कीपिंग का अनदर एग्जांपल, अगर कई जगह आप रिकॉर्ड रखते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा। आप अगर ये टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड पे फोटोग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं आपको एक स्ट्रिप नजर आ रही होगी, रेड कलर का एक रिबन यहाँ लगा हुआ है। वो जो रिबन है वो ये रिफ्लेक्ट करता है
कि यहाँ आपसे गलती होने की गुंजाइश अगर कोई है तो वो रिमूव कर दी जाए। देयर इज अनदर टूल कॉल्ड पोकायोके, वो यही चीज रिफ्लेक्ट करता है कि बंदे से गलती ना हो ऐसा कोई जुगाड़ लगा दो। दैट इज ए जापानीज वर्ड कॉल्ड पोकायोके। यहाँ एक पोकायोके इंप्लीमेंटेड है। आप देखेंगे जो रेड कलर के रिबन है ये इस प्रकार से लगाया गया कि मान लो आपने यहाँ से 4 नंबर फाइल उठाई और काम करने के बाद गलती से उसको 7 नंबर की जगह पे रखोगे तो ये लाइन टूट जाएगी। This ribbon in straight line will remain straight only when every file is at its designated place. So this is a पोकायोके कि मैंने अगर गलत जगह फाइल रखी इमीडिएटली हाईलाइट हो जाएगा, लाइन टूट गई मतलब मैंने गलत जगह फाइल रख दी है। सिमिलरली अगर अलग अलग जगह फाइल रख रहे हैं तो राइट साइड में देखिए ऊपर वाले में आपने ग्रीन रखा, नीचे येलो, ताकि इस शेल की फाइल येलो वाली ग्रीन में रखनी ही नहीं है। सो these are few examples of record keeping, जिससे रिकॉर्ड कीपिंग बड़ा इजीली और आसानी से रिट्रीवेबल रिकॉर्ड्स हो ऐसा बन सकता है, और इट इज मोर प्रेजेंटेबल आल्सो। देन टूल चेन ट्रॉली, लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे नीचे बहुत बार ऐसा होता है कोई डाई टूल बदलना है, उस टाइम पर आप टूल ढूंढ रहे होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, उसके लिए आप एक टूल चेन ट्रॉली बना के साथ में रख सकते हैं। स्टोर्स में ड्रम ऐसा रख सकते हैं जिसमें तेल वेस्ट नहीं हो, नीचे नहीं गिरे, एक टैप टाइप अरेंजमेंट लगा बना के लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये घर में 2S का एग्जांपल है। few examples of 2S at home also should be systematic and और सारा प्रॉपर हर एक चीज की डेजिग्नेटेड जगह और उसको वहीं रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंटेनराइजेशन आपस में टच होके खराब नहीं हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन कुछ गेजेस हैं तो इनके लिए भी हम शेडो बोर्ड्स बना लेते हैं ताकि वो गेजेस सामने ही रहे, ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेजिग्नेटेड प्लेसेस फॉर एवरीथिंग। अब देखेंगे फोर्क लिफ्टर हैं, पैलेट लिफ्टर हैं, उनकी जगह डेजिग्नेटेड हो ताकि फिर ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। अगर उसकी जगह डेजिग्नेट नहीं है तो वो कहीं पर भी खड़ा रहेगा, आपको फिर बाद में ढूंढना पड़ेगा। और अगर उसकी डेजिग्नेटेड जगह है तो आपको आसानी से 1-2 मिनट में वहां वो मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अनदर एग्जांपल है। एक पीएन अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑफिस खोलता है, उसका दिन भर का सारे साल का रूटीन ये रहता है, वो सुबह सारे ताले उसको ऑन करने होते हैं और खोलने होते हैं और शाम को लगाने होते हैं, और वो सारा साल ऐसा ही करता है, हिट एंड ट्रायल। पहली चाबी लगाएगा, एक ताला नहीं खुला, दूसरी ट्राई किया, तीसरी ट्राई किया, हर एक ताले के ऊपर हिट एंड ट्रायल करता है। सुबह भी करता है ताले खोलने के लिए, शाम को करता है ताले लगाने के लिए, और सारा साल ऐसा करता है। कितना टाइम वेस्ट होता है। अगर आपने तालों के साथ नंबर स्टिकर के लगा दिए और वही चीज आपने ये जो की होल्डर्स हैं उनके साथ में वो की रिंग्स हैं, वो की रिंग्स के साथ आपने जो है उसका वो नंबर लगा दिया, तो इट विल बी जस्ट इजीली ट्रेसेबल कौन से चाबी से कौन सा ताला खुलना है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ 2S। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये भी कुछ टूल्स रखे गए हैं, उसकी जगह बनाई गई है, टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनदर शैडो बोर्ड टूल्स रखने की। नेक्स्ट अनदर, ये भी टूल एक तरीके का शैडो बोर्ड है। नेक्स्ट। इवन क्लीनिंग मटेरियल जो है हमारा, ये जो क्लीनिंग मटेरियल हम रखते हैं, ये एक हाँ, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। वी हैव इंप्लीमेंटेड दीज प्रोजेक्ट्स इन ए हॉस्पिटल आल्सो। तो हॉस्पिटल में भी इस तरीके के कुछ मटेरियल जो थे जिनको गड़बड़ करके रखे हुए हैं, हमने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट किया। तो यू कैन रन थ्रू, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक हॉस्पिटल में है जहां पर अनवांटेड मटेरियल पड़े थे, और आफ्टर नीड जो है हमने वो बिफोर और आफ्टर में कैसे उनको कन्वर्ट किया आफ्टर यूजिंग दिस 2S। वी कैन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यस, इवन जो लोग क्लीनिंग करते हैं, दी टीम विच डज क्लीनिंग, उनको भी अपना टाइम जो सामान है वो सिस्टमेटिक तरीके से रखना चाहिए। नाउ वी कम टू द थर्ड एस पार्ट। पहले एस में हमने अनवांटेड आइटम्स रिमूव किए, सेकंड एस में हमने हर एक चीज की एक जगह डिफाइन की और उसको वहां पर रखना शुरू कर दिया ताकि टाइम सेव हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो ढूंढने में। एंड थर्ड एस सेज थॉरो क्लीनिंग, मींस आप जो भी क्लीनिंग कर रहे हैं वो सामने सामने से ना हो। हमारे को कई बार ऐसी चीज एनकाउंटर होती है कि सामने सामने से मशीनें अच्छे तरीके से साफ कर दी, एंड इफ आई हैपन टू विजिट बिहाइंड दी मशीन, तो वर्कर कई बार टोकते हैं, सर पीछे ना जाना, तो गंदे हो जाने, कोट गंदा हो जाएगा, पीछे मत जाना, पीछे से साफ नहीं है, सामने सामने से साफ है।
So the third S of 5S says जब भी आप cleaning करें, it should be thorough cleaning, ऊपर से नहीं. I'll show you some examples also. और यहाँ मैं एक example quote भी करना चाहूंगा. हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी घर में यदि ये देखना हो कि वो कितने सफाई पसंद है, don't see their drawing room. Everybody tries to maintain the drawing room in the best possible way. See their store and washroom. अगर उनका स्टोर और वॉशरूम बेस्ट मेंटेन्ड है, देन वो सफाई पसंद है. सो दिस कंसेप्ट इज थर्ड एस. जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि स्टोर के अंदर सुबह आए तो हमने वो अपने जो चादर है उसको भी प्रॉपर तरीके से वो तय नहीं किया और ऐसे रख दिया, चलो शाम को खाने की है. चप्पल भी एक इधर गई स्टोर में ऐसे रख दिया. Each and every place of the workplace should be thoroughly cleaned. This is the third S says about that. Next slide please. ये मैं कुछ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं कि जो इंटीरियर एरियाज हैं वो भी क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से होने चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Then the fourth S says standardization. अब यहां भी मैं कुछ घर के एग्जांपल लेना चाहूंगा. In our home, at our home, what we do is generally हम क्या करते हैं, sweeping brooming is done on daily basis. हर रोज सुबह जो है वो हम as per convenient time झाड़ू पोछा स्वीपिंग ब्रूमिंग तो हम करते ही करते हैं. बट जो कॉबवेब्स हैं इनको रिमूव करना, जाले रिमूव करने वाली एक्सरसाइज डेली नहीं करते. वो जनरली 15-20 दिन, महीना, डिपेंडिंग ऑन कितने कम लगते हैं ज्यादा लगते हैं, हम ऐसे उसको सफाई करते हैं. एंड साल में एक बार दीपावली के आसपास हम जनरली क्या करते हैं, सारे घर की सफाई, दीवारें, खिड़कियां, रोशनदान, पंखे, ट्यूबलाइट्स एटसेट्रा. वी ट्राई टू क्लीन ईच एंड एवरीथिंग. सो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स कि हमने मोटे तौर पर एक सिस्टम डिफाइन किया हुआ है. झाड़ू पोछा रोज लगेगा, जाले 15-20 दिन में एक बार साफ करेंगे, और जो पंखे, ट्यूबलाइट, दीवारें, खिड़कियां, रोशनदान वगैरह साफ करने हैं साल में एक बार, और अगर बजट अलाउ करे तो से पेंट और व्हाइट वॉश एटसेट्रा. What does it reflect? कि हमने ये एक सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, we know that, बट उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है क्योंकि एट होम वी आर फ्यू पर्सन्स एंड वो everybody is aware of that. बट एट वर्क प्लेस यू नीड टू डिफाइन कि आपने किस टाइप की क्लीनिंग कब कब करनी है, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड चेकलिस्ट बनानी पड़ती है. और अगर आपने किसको एग्जांपल देखना हो तो इफ यू हैपन टू विजिट एनी गुड रेस्टोरेंट, होटल एटसेट्रा, आपको दिखेगा वहां उनकी जो टॉयलेट रहती है उसकी जो डोर है उसकी बैक साइड पे एक चेकलिस्ट लगी रहती है. फलाने टाइप की सफाई 4 घंटे में एक बार, फलाने टाइप की सफाई 12 घंटे में एक बार, लाइक दैट. और वहां पर किसी की ड्यूटी लगाई जाती है जो उसको चेक करके ये डिसाइड करता है, उसको इंश्योर करता है कि ये वाली सफाई टाइमली हो रही है, जो जो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन की हुई है. सो दिस इज हाउ फोर्थ एस कैन बी इंप्लीमेंटेड. टोटल ऑर्गेनाइजेशन में, टोटल सर्विस चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, किस किस टाइप की क्लीनिंग कब कब होगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना, और उसको फिर प्रॉपर तरीके से फॉलो करना इस तरीके से, और प्रॉपर हर एक जगह जो भी सिस्टम लगाए हैं उसको लागू करना as a standard system. This is the fourth S part. Next slide please. Next slide. ये कुछ वो चेक शीट जो है. Next fifth S says self discipline and training. यहाँ पर हम जो भी systems हमने define किए हुए हों वो सारे as a spirit में proper तरीके से इन टोटो जो है religiously follow करने चाहिए. और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन नया ज्वाइन करता है तो वी नीड टू ट्रेन दैट पर्सन आल्सो, कि उसको बताएं हमारे यहाँ क्या सिस्टम्स हैं 5S के, सो दैट ये सस्टेन होता रहे. सो दिस इज द फिफ्थ एस पार्ट कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग. नाउ आई लाइक यू टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक डिसिप्लिन का एग्जांपल है. नेक्स्ट, ये 5S इंप्लीमेंट करने से पहले का एरिया है और बाद के एरिया है. Next slide, please. After 5S implementation, next slide, please. Next slide. Next slide, please. So this is a workshop जो कि बिल्कुल systematic हो जाती है जब हम 5S को proper तरीके से implement कर देते हैं. So these are few examples of before and after of 5S, before implementation and after implementation. Next slide, please.
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो जो 5S सिस्टम है, इसको अगर हम कहीं पर भी लागू करते हैं तो सबसे पहला पार्ट तो ये है कि वहां पर वर्कप्लेस की इंप्रूवमेंट होती है, वेस्टेज एलिमिनेशन होती है, वर्कर्स जो वहां काम कर रहे हैं, स्टाफ के लोग जो काम कर रहे हैं, उनका मोरल इंप्रूव होता है। और इसको अगर हमने दूसरे नजरिए से देखना हो तो ऑल्दो हम एक एक्सरसाइज रखते हैं ऑडिट्स का पार्ट, कि कोई भी अगर कहीं पर भी हमने देखना हो कि 5S का स्टेटस क्या है, तो वी शुड फॉलो ए चेकलिस्ट एंड उसका एक ऑडिटिंग प्रोसेस करें, रेटिंग पे, और फिर डिसाइड करें कि ऑर्गेनाइजेशन में 5S या इस जोन में 5S कैसा है, क्या लेवल है उसका। बट एज ए थंब रूल मैं अगर बड़ा देसी साइज का एक लॉजिक यूज करूं, तो उसमें हम ये लॉजिक यूज करते हैं, सी यू आर द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू गेट ए कॉल फ्रॉम योर कस्टमर कि हम आपके यहाँ विजिट करना चाहते हैं। अगर तो आप यू आर एवर रेडी फॉर एनी कस्टमर विजिट, यानी आपका 5S का सिस्टम का कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया है कि आपको कस्टमर का फोन आए और आप कहें आओ जी सदके, तो देन योर 5S इज इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सीलेंट। पर कई बार हमें थोड़ा गैप होता है, तो वी नीड टू चेक और इम्प्रूव। अगर हमें 1-2-3 घंटे लगते हैं कोई कस्टमर का फोन आने पर प्रिपरेशन करने के लिए, तो देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू 5S। पर अगर आपको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं कस्टमर की विजिट के हिसाब से तैयारी करने के लिए, इट गिव्स ए रिफ्लेक्शन की 5S इज वेरी मच डिस्टर्ब, यू नीड टू वर्क अपॉन इंप्रूविंग द 5S पार्ट। तो ये बड़ा सिंपल सा देसी लॉजिक है, कितना टाइम आपको लगता है तैयारी करने के लिए कस्टमर विजिट के लिए, दैट गिव्स ए क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर 5S स्टेटस। तो आइडियल क्या रिक्वायर्ड है कि आप यू आर एवर रेडी फॉर एनी कस्टमर विजिट एनी टाइम, कभी भी कोई आ जाए, वी शुड नॉट बॉदर कि हमें कोई तैयारी करनी पड़ेगी। So this was all about the concept called 5S. But when I was discussing, हम जब इस प्रोग्राम को चॉक आउट कर रहे थे, आरती टोल्ड मी कि सर आप 5S के साथ साथ में अगर कुछ और अपने टिप्स शेयर करें कि हम कोई इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। So I have tried to include those some important points also in this say presentation. I would like to share that also. So ये जो रोल डिफाइनिंग एक पार्ट है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार ये देखा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर नॉट क्लियर अबाउट कि उनको क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, और देयर इज ए गैप बिटवीन परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन, वो जो समझता है मुझे क्या काम करने चाहिए, और आप एज ए सीनियर उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, योर एक्सपेक्टेशन वर्सेस हिज और हर परसेप्शन। लट गया। Hello, Surinder sir. Yes, sir. Yes, please continue, Yeah. sir. Yeah, please continue. Okay. Yes, please. So, ma'am, I'm not going to take much time. It will now take the maximum around 10 minutes only. So, हमारा एक ये रोल का गैप बहुत अंडरस्टैंडिंग का रहता है। पहले तो क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि मुझे क्या काम करना है, और उसके बाद अगर क्लैरिटी थोड़ी बहुत है भी, तो परसेप्शन वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ द सीनियर, इसमें बड़ा गैप रहता है। So what we generally do is in an organization, what we do is, next slide please. Next slide please. Okay. तो वर्कर्स जो मशीन पे काम कर रहे हैं उसके लिए तो बड़ा क्लियर हम डिफाइन करके एसओपीज लगा देते हैं या वर्क इंस्ट्रक्शंस की, उसमें कैसा काम करना है। बट एज फार एज स्टाफ इज कंसर्न, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम हर एक पर्सन से उसकी परसेप्शन के हिसाब से एक रोल एंड एक्टिविटीज डिफाइन करवाते हैं। एक फॉर्मेट है, आई विल शेयर विद यू, लास्ट स्लाइड जो है वो फॉर्मेट्स की ही है। तो वी गिव इट टू एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आप जो समझते हैं मेरे क्या रोल एंड एक्टिविटीज हैं, उसको एक बार डिफाइन कर लीजिए। जो आप वो हर एक पर्सन ने अपनी एक्टिविटीज जो उसकी परसेप्शन के हिसाब से डिफाइन कर दी, देन वी गेट इट रिव्यूड फ्रॉम द एचओडी साइड। जब हम एचओडी साइड से उसको रिव्यू कर लेते हैं तो उस केस में फिर कुछ गैप्स मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसके बाद हम हर एक जो है जो पर्सन है उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने का एक सिस्टम बना के देते हैं। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक्टिविटी चेकलिस्ट, एक हम डिजाइन करके देते हैं
जिससे उसके टाइमली सारे काम पूरे होते रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है। अभी ये पहला पार्ट था रोल डिफाइनिंग तक, कि हर एक पर्सन को पता हो उसने क्या काम करने हैं। बट उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डेली वर्क मैनेजमेंट। जो उसने काम करने हैं वो जो डिफाइन हो गए, उसका एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाए कि वो अपने काम टाइमली पूरा करता रहे। इट इज वेरी सिंपल। कुछ सम फॉर्मेट्स हैं, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे दो तरीके के काम होते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हर एक पर्सन को हम ये जो फॉर्मेट देते हैं उसने अपनी परसेप्शन के हिसाब से लिखना होता है कि उसकी क्या क्या रोल एंड एक्टिविटीज हैं। अब उसके साथ साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करता है। आप देखेंगे देयर इज ए कॉलम कॉल्ड फ्रीक्वेंसी या फिक्स डेट ऑफ एक्टिविटीज। मान लीजिए मैं कोई काम डेली करता हूं, आई हैव टू मेक सम रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस, तो मैं उस एक्टिविटी के आगे लिखूंगा डेली। बट अगर वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एक्टिविटी है, कई हमारी एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं जो कभी कभार करने वाली है, तो उसके आगे मैं फ्रीक्वेंसी डेली वीकली नहीं लिखूंगा, उसको खाली छोड़ दूंगा कि इसकी कोई तय फ्रीक्वेंसी नहीं, दिस इज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एक्टिविटी। और अगर उसकी रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है तो यस नो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं। सो ये जो फॉर्मेट है वी गेट इट फील्ड फ्रॉम एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसको फिर उनके सीनियर से इवैल्यूएट करके वो गैप दूर करते हैं, जिससे कि क्लैरिटी आ जाए कि उस हर पर्सन का क्या रोल एंड एक्टिविटीज है। दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे दो प्रकार के काम होते हैं। एक है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एक्टिविटीज, कभी कभार वाले काम, और एक है फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक्टिविटीज, डेली वीकली मंथली और फिक्स डेट एक्टिविटीज। तो जो हमारे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एक्टिविटीज है उसके लिए हम ये फॉर्मेट जनरली डेली वर्क मैनेजमेंट यूज करते हैं। आप देखेंगे इसमें जो कॉलम्स हैं वो है डेट, सीरियल नंबर, थिंग्स टू डू सेल्फ, और आगे एक कॉलम है थिंग्स टू फॉलो अप। इसके बाद टारगेट डेट के बाद हमारे जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एक्टिविटीज होती है कभी कभार वाली भी, वो भी आगे दो तरीके से डिफाइन हो सकती है। एक ऐसी एक्टिविटी जो मुझे खुद ही करनी है, पर कई बार एक ऐसी भी एक्टिविटी है जो मेरे सीनियर ने मेरे से कोई रिपोर्ट मांगा है, लेकिन वो रिपोर्ट मैंने किसी और से बना के देनी है। से फॉर एग्जांपल मैंने वो काम, मुझे कहा किसी ने, अब वो मैंने आरती को कह के करवाना है, तो इन दैट केस मैं अपनी थिंग्स टू डू वाले जो फॉर्मेट है उसमें थिंग्स टू फॉलो में वो काम लिखूंगा और आगे विद हुम में आरती का नाम लिख दिया। बट आरती जो अपनी शीट मेंटेन कर रही होगी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, एक क्रॉस चेन ऑफ अथॉरिटीज रहती हैं, तो जो आरती अपनी थिंग्स टू डू फॉलो मेंटेन कर रही होगी उसमें थिंग्स टू डू सेल्फ में वो नोट करेगी, जिससे कि हर एक एक्टिविटी का एक कोरिलेशन मैंने उससे फॉलो करके करवाना है, लेकिन उसने वो खुद करना है। और जब वो काम हो गया, शाम को हमने रिव्यू कर लिया, मेरे जितने काम हो गए ठीक हो गए, आगे और काम लिखने शुरू कर दिए। इसी तरीके से हम ये जो काम है इनको हम जब अपने उसमें ट्रैकिंग में ले आते हैं, तो जब ये फॉर्मेट फिल हो गया, नया फॉर्मेट लगा लिया, इसमें से जो काम रह गए उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना है नए फॉर्मेट में। इसकी बैक साइड पे जो प्रिंटेड है वहां पर आप नए काम लिख लेंगे, जो पेंडिंग है उसको रिव्यू करते रहेंगे। तो दिस इज ए मैकेनिज्म टू रिव्यू योर डेली वर्क व्हिच आर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कभी कभार वाले काम। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे दो प्रकार के काम होते हैं, एक है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जिसके लिए फॉर्मेट यूज हो सकता है, बट एक दूसरा फॉर्मेट है जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक्टिविटीज के लिए है। आई वुड लाइक टू शो दैट फॉर्मेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये एक फॉर्मेट है जो हमारी फ्रीक्वेंसी जिनकी फिक्स है तो उसका हम मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे यहाँ लिखी हुई है गतिविधि, और उसके आगे एक जगह लिखा है डेली, दैनिक, और उसके आगे 1 से लेकर 31 तक कॉलम बने हुए हैं। ऐसे ही जो वीकली एक्टिविटीज नीचे हैं उनके आगे 4 कॉलम्स हैं, फोर्टनाइटली एक्टिविटीज का भी 2 कॉलम है, मंथली एक्टिविटीज का भी, और इंपॉर्टेंट डेट्स। कोई काम इस तारीख तक पूरा करना है तो आप उसके काम लिख के उसके आगे डेट लिख लेते हैं। सो दिस इज हाउ आप इस तरीके से 1 महीने की आपकी पूरी चेकलिस्ट बन गई। जो रेगुलर एक्टिविटीज है फ्रीक्वेंसी बेस्ड, उनके लिए आप साथ साथ में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि मेरे जो काम है टाइमली पूरे हो रहे हैं। अब ये जो 2 टूल्स हैं इसका एक दूसरा भी फॉर्मेट है, आई लाइक टू शो यू दैट। ये फॉर्मेट है डेली, वीकली, मंथली के लिए, लेकिन अकाउंट्स एंड फाइनेंस एटसेट्रा कुछ डिपार्टमेंट्स में उनकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती है, कोई मंथली उनको रिटर्न भेजना है या क्वार्टरली रिटर्न भेजना है या कुछ हाफ ईयरली या ईयरली एक्टिविटीज है। सो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में उनको अपनी एक्टिविटीज के लिए ऐसा भी एक शीट मेंटेन करना पड़ता है जिसमें
जनवरी फरवरी मार्च के हिसाब से मंथली एक्टिविटीज रिव्यू होंगी, ऐसे ही क्वार्टर वाइज हाफ ईयरली या ईयरली एक्टिविटीज रिव्यू होंगी। सो इस तरीके से आप जो टोटल एक्टिविटीज है दोनों प्रकार की, कभी कभार वाली एक्टिविटीज के लिए थिंग्स टू डू वाला फॉर्मेट और रेगुलर एक्टिविटीज के लिए फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक्टिविटीज के लिए आप ये दो तरीके का फॉर्मेट, मंथली और ईयरली वाला जो फॉर्मेट है, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दीज फॉर्मेट्स, तो ऐसे में हमारा ये मानना है, जो हमने प्रैक्टिकल देखा है, कि लगभग 30% इफेक्टिवनेस इंक्रीज आता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि बहुत, मान लीजिए मुझे 15 काम करने हैं और वो 15 काम यदि मैं ज़बानी याद रखने की कोशिश करूंगा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो भूल गए, कोई याद नहीं रहा बीच में से। बट इफ वी आर मेंटेनिंग इट इन सच ए वे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि कोई भूलने की वजह से काम रह गया। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स कि हमारे जो टोटल काम है वो हम प्रॉपर तरीके से अगर मॉनिटर करते हैं, तो उससे आपका जो वो पार्ट है, वो कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता है। इससे ये सिस्टम बन जाता है कि आपके सारे काम टाइम पे पूरे हो रहे हैं। और अगर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एवरीबॉडी फिनिशेस हिज और हर वर्क इन टाइम, सो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस में बेटरमेंट आती है, और ये जल्दी 30% तक आ जाती है। बट वी हैव ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकली while implementing these in our projects. So these were few inputs which I have shared with you on the basis of my experience कि हम कैसे अपनी कुछ इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या जो 5S सिस्टम है इसको बेसिकली अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लागू करना है तो कैसे लागू कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। So from my side, Aarti, my side delivery or presentation part is okay. Thank you. Any queries from anybody? So we would like really love to answer those queries. Yes, yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ, I would like to ask attendees if they have any queries, any questions, please let us know. And thank you, sir, for this wonderful session. It was really great. And yes, excellent training. Thank you from Triloks. Thank you very much for, No. thank you, Rajshri, Aarti, Manisha, Vrinda. I'm really thankful to you for, say, arranging this webinar, first webinar of Punjab Ludhiana chapter, PCC Ludhiana chapter. So this is the start. तो मैं ये एक शेयर से इसको कंक्लूड करना चाहूंगा. This is the start, so I am using this. Otherwise, generally मैं ऐसा यूज नहीं करता हूँ. सच है तहजीब ही इखलाक की जान होती है. सच है तहजीब ही इखलाक की जान होती है. फूल खिलते हैं तो आवाज कहाँ होती है. सो ये पीसीसी लुधियाना चैप्टर की एक्टिविटीज अभी स्टार्ट हुई हैं, तो अभी फूल खिलना शुरू हुआ है, लेकिन आवाज हुई हो नहीं हो, लेकिन दिस विल ब्लॉसम लाइक दिस. दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव एंड वी वुड लाइक टू कैरी दिस इनिशिएटिव ऑन ए मंथली बेसिस. एटलीस्ट वंस ए मंथ तो जरूर करें. हम ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस. Very wonderful session, sir. Very wonderful conclusion as well. Even we enjoyed it. I learned a lot on personal level कि personal level पे भी हम कितना organized रहकर अपनी life को effective बना सकते हैं. So yes, very wonderful learning. Thank you so much.